अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट की सीरीज का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर देने जा रहे हैं। सो टुडे टॉपिक विल बी अबाउट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड द रेस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट एजेंसी? एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, तो वो अदर्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को अप्रोच करता है और उनके ज़रिए वो अपने एचआर प्रोसेसेस को ले करते हैं एंड दे do this recruitment and selection process through these employment agencies. And employment agencies differ in their scope. Some were given the option of the portion of the recruitment and selection process that was either the recruitment process or the whole as well. So around the globe, there are three types. One is public agencies, which is owned by the government and which is providing the employment opportunities to the general masses. While on the other extreme, there is private agencies, business concerns, which are providing these services to the general, to the masses and to the applicants through certain fee charging from them, as well as from the organization for whom they are doing the recruitment and the selection process. In between these, there are some non-profit agencies, employment agencies, जो कि कुछ cooperative societies ने बनाई होती है या कोई non-for-profit organization जो पाकिस्तान में under Companies Act 2017 के तहत as a non-profit organization registered है या कोई NGO है which is there to provide the employment services to the organization and to the applicants. So in Pakistan, we don't have such type of non-profit agencies. Either we have public agencies for employment, which are very few in numbers. उसमें भी कुछ पूरे recruitment and selection का process के नहीं है. There are only one which is overseas Pakistanis के लिए हैं, overseas opportunities के लिए government owned agencies हैं. The mostly are private agencies or business concerns for the employment as an employment agencies or organization. So why we use such employment agencies? Because it may be the reason that the hiring company जिसने एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को फिर सर्विसेज के लिए लेकर आना है, उसके पास अपना एचआर डिपार्टमेंट नहीं है. सो इफ दे डोंट हैव द एचआर डिपार्टमेंट, सो अब वो एक मतलब है कि हायरिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए पूरा डिपार्टमेंट नहीं बना सकते. रादर दे गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड दे आस्क देयर हेल्प थ्रू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, और सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जो है दे कैन recruit or even give them the other option, that is selection as well. So HR का डिपार्टमेंट नहीं होता और वो HR डिपार्टमेंट के लेक की वजह से जो रिक्रूटमेंट और स्क्रीनिंग कैपेबिलिटीज है टू अट्रैक्ट द एलिजिबल क्वालिफाइड एंड अवेलेबल pool of applicants वो नहीं हो पा रहे होते. So then the organization used to outsource and give it to unemployment agencies the process. Then another one is, so that lack of HR department is one of the reasons to hire the services of a private employment agencies. Then another option may be HR department हमारे पास है and we have all the resources to run an HR department and manage an HR department. But we need to fill a particular position very quickly. And we don't want to go through the recruitment process wholly कि application ले ले और उनकी testing कर ले, interviews वगैरह कर दें. So at that point of time, we then have the services of employment agencies कि वो हमें जो उनके पास अपने एक database होता है, human resource information system होता है, inventories होती हैं उनके पास, and they search from them and they give few names up to us and to select one among those. So that is the second reason that why we have the private employment agencies. And the third one is to attract more desired are required, for example, minority or females or some professional qualified applicants, which is not
अप्रोचेबल थ्रू जनरल मीडिया, सोशल मीडिया। सो उसके लिए फिर हम हायर करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनके सर्विसेज के, लाइक हेड हंटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज की जो हमने बात की, या कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम प्रिंट मीडिया के जरिए अपना एडवर्टीजमेंट शायद नहीं पहुँचा सकते हैं, और ना ही maybe those professionals are not feeding this print media and social media. So उसके जरिए फिर हमें ऐसे लोग चाहिए. So as these private employment agencies have the approach to those applicants, those prospect applicants, so इसीलिए फिर हम इनकी services लेते हैं. And the fourth one is to reduce the internal time resources devoted to recruitment, because recruitment is not a simple process. It needs a lot of resources, lot of time and all those. So usko bachane ke liye we outsource this to a specialized firm which is there, which is used to do this employment assignment. So usko hum de dete hain. And the very last one is to reach currently employed individuals who are more comfortable dealing with agencies than competing companies. कुछ लोग जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं और वो जॉब कर रहे हैं, बट वी नीड certain people जो कि ऑन जॉब भी है लेकिन वी वांट टू गेट देम हायर. सो हम डायरेक्टली फिर इन लोगों से नेगोशिएट नहीं करते, बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट गुड to negotiate to some other companies and I'm doing in company A or I'm talking to company B. So rather they are at ease while talking to an employment agency or an executive recruiter to talk to about their prospect job and assigning the new position and getting the new position in the company B through the employment agency. So in such a situation जब हमें किसी खास बंदे की या उस जैसे खास डिजायर लेवल की जरूरत होती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो हमसे डायरेक्ट कंपीटिंग कंपनीज में से उनसे बात कर लें जो उनकी कंपनी के साथ भी कंपटीशन में करती हैं. सो दे कम थ्रू दीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. So what we can have so many problems with while outsourcing our employment and recruitment and selection process. So what that can be and how we can avoid such problems. So the very first one is give agency an accurate and complete job description and specification. We time and again emphasize on the accurate and complete job description and specification. And the sole reason is कि जिस बंदे को हमने हायर करना है उसकी हायरिंग प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटीज, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, ऑक्यूपेशनल स्किल्स, and all those are jotted down in their job description and job specification. So if we want to get someone to hire someone through employment agency, तो हमें employment agencies को भी proper information देनी है जिसके जरिए वो job description जो है उसके accordingly हमें बंदा दे सके. And then it has to be make sure that test application blanks and interviews are part of the agency selection process. हम फिर ये देखें कि जिस eligible pool of candidate की तरफ हम देख रहे हैं या जिस तरह का desired employee हमें चाहिए उसके लिए जो desired level है वो testify हो चुके हो, वो थ्रू सम मीन्स उसके टेस्ट लिए जा चुके हो, उसकी इंटरव्यूज हो चुके हो. हाँ, if we are in a position and if or in a given circumstances जब हमें बहुत जल्दी में कोई बंदा चाहिए, so we may skip some of the test and some of the interview process, but there shall be some selection process at least. And then the third one is we have to review the candidate accepted or rejected by our firm or the agency for effectiveness and fairness of the agency screening process. क्योंकि sometime ये हो सकता है कि जिस employment agencies को हम ये function दे रहे हैं, they may have the nepotism and the favoritism thing. So उन्होंने किन बंदों को reject किया और किन basis पे reject किया, किन को accept किया और किन basis पे accept किया, we shall know that. और हमें फिर एक गो थ्रू करना चाहिए कि किन बंदों को जो रिजेक्ट किया क्यों किया, जिनको एक्सेप्ट किया, जिनको वो प्रोसेस में लेकर आए. सो व्हाट द रीजंस आर द बेसिस फॉर दैट. एंड देन स्क्रीन एजेंसी फॉर इफेक्टिवनेस इन फिलिंग पोजीशन. हमने एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को ये दे दिया कि जी यू हैव टू गो थ्रू फॉर टू डू अ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अस, और उन्होंने हमें लोग सेलेक्ट करके दे दिए. Now we are going के जो बंदे हमारे पास आए हैं is it as per the job description and specification. एक बात. दूसरी बात ये है कि उनके परफॉर्मेंस हम देखेंगे और उनकी फेयरनेस भी हमने चेक करनी है. So the effectiveness means the quality of the filling the employee they are giving us as a selected one in, after
रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी इफेक्टिवनेस के जरिए फिर हम देख सकेंगे कि जिस एजेंसी को हमने ये टास्क दिया था, do that did their best or not. And then the key one is that is the supplement the agency references checking the final candidate references yourself. Think a reference check is a very much important, especially in today's world, in what we say post 9/11 world, or the current scam filled world, or the fraud filled world, जहाँ पे हमने किसी एप्लीकेंट के बारे में वी हैव टू मेक श्योर कि ये यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्कीम कोई इस तरह की चीज करके नहीं जाएगा. सो जो बंदे वो हमें सेलेक्ट करके थे उनकी रेफरेंस चेक हमें दोबारा खुद से करनी पड़ेगी, रादर डिपेंडिंग होनली एंड सोनली ऑन द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी. नाउ कम्स द स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हमने बात की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की, वो हमें एम्प्लॉय जो यूजुअली देती हैं वो फॉर लॉन्ग टर्म देती हैं, जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज हैं. लेकिन हमें कभी कभार जो है हमें प्रोजेक्ट्स के लिए 6 मंथ के लिए प्रोजेक्ट के लिए लोग चाहिए होते हैं. कभी हमें सीजनल लोग चाहिए. सीजनल मीन्स के एक पूरे साल में 3 महीने सीजन चलता है, तो उस सीजन में हमें कुछ लोग चाहिए. या ये है कि कोई हमारे पास वैकेंट पोजीशंस हैं और हम उससे कोई परमानेंट बंदा नहीं रखना चाहते, रादर वी वांट समवन टू फिल इन दैट पोजीशन, जैसे पब्लिक के ज़बान में इन लीव आउट कहते हैं, उनको करने के लिए. सो हम उसके लिए पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से नहीं गुजर सकते. सो देन वी ask these companies to provide such employees, जिनको हम टेम्पररी एम्प्लॉयज भी कहते हैं या टेम्प एम्प्लॉयज भी कहते हैं, जिनको हम प्रोजेक्ट या सीजनल एम्प्लॉय भी कहते हैं. सो दीज आर कंट्रैक्टेड जी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए फिर हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई कभी ये है कि हमें फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, हमें एक कंसल्टेंसी चाहिए, हमें टेक्निकल एम्प्लॉयज की कुछ पर डे या पर वीक कुछ टाइम चाहिए होता है. सो दैट व्हाट वी कॉल अल्टरनेटिव स्टाफिंग, कि हमें उनकी कितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं और कितने टाइम के लिए, हाउ वी हैव टू पे देम, व्हाट विल बी द पेमेंट रेट, पर आर के हिसाब से होगा, पर प्रोजेक्ट होगा. सो व्हाट विल बी द रीजन. And on-demand recruitment services provide short-term specialized recruitment to support specific project with the expense of retailing traditional search firms. For example, we have to orient and introduce new product. तो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टफ लोग चाहिए होते हैं जो कि पब्लिसाइज कर सके. उसके लिए हमें फील्ड वर्कर चाहिए जो कि कुछ हमें सेल्स जो हमारे ऑलरेडी सेल्स फोर्स हैं उसको सप्लीमेंट कर सके. सो सप्लीमेंट के लिए फिर हमें कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए चाहिए. सो दैट व्हाट वी कॉल ऑन डिमांड रिक्रूटमेंट सर्विसेज. In today's world where ICT is making the whole world shrinking, and specifically in post COVID-19 era, यहाँ पे बहुत से जो jobs हैं वो हमें अब ऑफिस बेस नहीं चाहिए. And that's what we used to use this term offshoring or outsourcing jobs. ऐसे jobs जो कि ऐसे employees जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है at the workplace, rather we need to the final product what they are doing with. For example, website maintenance, website designing है, या कोई और ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टेलीकम्यूटिंग या वर्क फ्रॉम होम के जरिए किया जा सकता है. सो इफ वी outsource or offshore those jobs, so that is a recruitment and selection process. लेकिन उसमें मसला ये है कि कौन सी जॉब हमें आउटसोर्स करनी है, कौन सी नहीं करनी, बिकॉज वी कैन नॉट आउटसोर्स और की जॉब्स. क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके पास प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग है, पूरा सब कुछ पड़ा हुआ है, वी कैन नॉट आउटसोर्स सच अ जॉब जिसमें से प्राइवेसी है, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न है. सो हम सिर्फ वो जॉब आउटसोर्स या ऑफशोर मींस के जो बहुत दूर के ममालिक को दे रहे हैं, स्पेसिफिकली इन करंट एरा जो कॉल एजेंट सर्विसेज हैं, कॉल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं. सो यूरोप में और वेस्ट में वो मोस्टली ऑफशोर, पाकिस्तान, इंडियन एंड द बांग्लादेशी पीपल आर डूइंग दैट जॉब, जो कि यहाँ पे कॉल एजेंट सर्विस दे रहे हैं. यू आर कॉलिंग समवन at the Barclay in New York, your call is got connected at Pakistan
इस्लामाबाद और कराची। सो उस तरह की तो हम कर सकते हैं, बट देयर आर इश्यूज विद दैट। एक तो ये है कि कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिस कल्चर से वो बंदा कॉल कर रहा है और जिस बंदे के पास से जॉब आउटसोर्स हो चुकी है, अब देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज इफ समवन इन अमेरिका इज कॉलिंग अ कंपनी एंड you ask his name and he said कि जी I am John Blake, आप John Milton type. अब उसको American didn't bother by calling to be called by their first name. If you say कि Mr. John, so that's okay for them. But if you say same thing to a German person, he will be so annoying one, because there is a norm in Germany that you cannot call someone by first name. So you cannot say कि John. You will be saying Mr. Milton, what you want to say. Because वो फर्स्ट नेम उन्होंने रखा होता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए. सो दैट इज कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छे लग रहे हो, उनके कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छे नहीं लगते. एंड द सेकंड इज कस्टमर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न. यही अगर कॉल एजेंट की हम बात लें कि जिसके पास फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है वो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो एप्लीकेंट्स का जितना परफॉर्मा जो इंफॉर्मेशन है वो भी उनको एक एक्सेस दी हुई है. दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. ये एक दो धारी तलवार है कि उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है दैट इज एट स्टेक. So while outsourcing or offshoring the job, it has to be taken into consideration कि कहीं प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइवेसी ब्रीच हो गया so the customer may bring you to the court of law and the defamation lawsuits and all those. The company has to bear those costs as well. Foreign contracts liability and legal concerns, वही बात है कि जो एक गिवन कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग एक कंट्री में कुछ और है, वहाँ की लीगल ऑब्लिगेशंस कुछ और है, दूसरी कंट्री में वो कुछ और है. सो वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन all such legal and contract concerns while outsourcing the job as well. Special training for foreign employees, जो expatriates होते हैं, जिनको वहाँ की कल्चर के बारे में हमने बताना होता है, किस तरह करना है, किस तरह है, किस एक्सेंट को वो समझ सकते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए, अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, वट अदर सॉर्ट ऑफ द. कॉस्ट ऑफ फॉरेन वर्कर जो है वो बहुत बढ़ रही है. हमारे लिए तो बड़ी है, लेकिन जो वेस्ट है विच इज़ वेरी, जिनका पर कैपिटा इनकम जो बहुत ज़्यादा है, उनके लिए थर्ड वर्ल्ड के एम्प्लॉइज़ को लेना एज एन उनको जॉब आउटसोर्स करना उनके लिए बड़े फ़ायदे का रहता है. लेकिन उस फायदे के साथ साथ ये एक इशू है कि जो हमने कहा कि प्राइवेसी कंसर्न है, कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और इस सारी चीज़ को जो ट्रेड यूनियंस है वहाँ की वो उनको अपोज कर रही है. और हमारे यहाँ भी ये होता है कि जी आप एक चीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आउटसोर्स का मतलब ये है कि अब एम्प्लॉइज की तादाद जो है वो कम होती जाएगी. सो हाउ वी हैव टू कोप दिस things has to be kept in consideration. And the another one is political and military instability. कि जिस कंट्री से आउटसोर्स हो रही है वो, और जिस कंट्री को आउटसोर्स हो रही है वो जगह, दोनों जगह पे पॉलिटिकली एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी होनी चाहिए. अगर इनस्टेबल सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव आउटसोर्स योर कॉल सर्विसेज इवन टू फॉर एग्जांपल अ कंट्री जहाँ पे टुडेज वर्ल्ड अगर हम बात करें किसी इंडियन टेरिटरी में, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टेक बाय समवन एंड इट इज अबोलिश्ड. अब आपको फिर एज या तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि आप वहाँ की सर्विसेज किसी दूसरी जगह ले सके, अगर नहीं है देन यू हैव टू सफर. सो यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन कि जहाँ से आउटसोर्स हो रही है वो, और जिस जगह को आउटसोर्स की जा रही है जिस कंट्री को, वहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेबिलिटी कैसी है. नाउ कम्स टू द एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स, जिसको हम हेड हंटर्स भी कहते हैं. नॉर्मल रिक्रूटर्स ये होते हैं कि जो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए दे आर डूइंग दिस स्टफ. सो लेकिन हेड हंटर्स या एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स वो होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए, फॉर एग्जांपल चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स है, डायरेक्टर पीएमयू है, इस तरह के बड़े ओहदों के लिए, सब बड़े ओहदों के लिए यूजुअली फिर हम एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स को हायर करते हैं उनकी सर्विसेज को.
एंड व्हाई इज दिस सो? बिकॉज हो सकता है कि हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इतना कैपेबल ना हो कि लीडरशिप पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट कर सके, सिलेक्शन प्रोसेस कर सके, बिकॉज वो जो जिन बंदों को हमने एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए लेना है वो कोई आम बंदे नहीं होते। उन आम होते नहीं है तो उनकी जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है वो भी नॉर्मल प्रोसीजर की तरह नहीं लेकर आना। हमने उनकी डिग्निटी, हमने उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली उनको डील करना, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं। So for that we have this specialized employment agencies or firms which we used to call executive recruiters or headhunters. Headhunters कहते हैं वो दिमागों के जो शिकार कर सकते हैं। So how to do that? We have to make sure that firm is capable of conducting a thorough search. जिस बंदे को हमने, जिस फर्म को हमने एज अ हेड हंटर जो है वो हायर करना है, उसके लिए फिर हमने देखना है कि जिसको हम हायर कर रहे हैं, जिस फर्म को, क्या उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस लेवल को सर्च कर सके। फॉर एग्जांपल वी नीड चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन के लिए डू दे हैव द सर्टेन कैपेबिलिटीज कि वो उस लेवल के लोगों को सर्च कर सके। मीट इंडिविजुअल हु विल हैंडल योर असाइनमेंट। फिर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर में जो बंदे हमारे असाइनमेंट को डील करेंगे, हमें कोई सीएफओ उन्हें लेकर देना है, तो उस बंदे से भी मिलेगा कि उसको हम समझा सके कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट रेलेवेंट पोजीशन। आस्क हाउ मच द सर्च फर्म चार्जेस, इनके चार्जेस पर एप्लीकेंट वो चार्ज करेंगे या पर सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट वो चार्ज करेंगे, दैट इज देयर डिफरेंट वेज, या वो पूरा प्रोजेक्ट ले रहे हैं। सो वी हैव बीन टू नाउ दिस थिंग, इनकी चार्ज कॉस्ट जो है वो कैसे, कितनी पड़ेगी, कितनी वो चार्ज करेंगे। Make sure that recruiter and you agree on what sort of person you need for the position, as again we re-emphasize on the जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन कि किस तरह, क्या उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी ड्यूटीज उस बंदे ने परफॉर्म करनी, किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, किस तरह के स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स उस कंसर्न बंदे में चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने सीएफओ की बात की, अब सीएफओ के लिए हम जाहिर सी बात है कि हम कहेंगे कि भाई या आईसीएमए का फेलो हो, या आईसीसीए का फेलो हो, या आईसीए का फेलो हो, या एसोसिएट हो, इस लेवल के कोई बंदे हो तो फिर हम उसको देख सकेंगे। Never rely solely on the recruiter to do reference checking, because when you are near to hire the person, you shall go for the reference check as suggested in the previous slides as well. So वो उसको हमने उसके references जिसने provide किए हैं कि जहाँ जहाँ पे उसने काम किया है, so we have to have a check on those references, उनके experience और उन सबको, ताकि जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव रिक्रूट होकर आ जाए, हायर होकर आ जाए, वो हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, वो प्रॉफिटेबल हो हमारे। कॉलेज और ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, सीडीसीज होती हैं, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, बहुत से बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आफ्टर 2011 ये ट्रेंड शुरू हुआ और आजकल अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीडीसी का सेटअप रखती है, प्लेसमेंट ऑफिस का, इसको हम कैरियर डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं। सो कंपनीज अप्रोच दोज कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स एंड आस्क देम कि जी हमने ऑन कैंपस एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट करनी है। इनविटेशन लेटर जाते हैं, होस्ट असाइन होते हैं, इंफॉर्मेशन पैकेज प्रिपेयर होता है, अंदर इंटरव्यूज किए जाते हैं, और फिर टाइमली एम्प्लॉयमेंट ऑफर हम उसे हो सकता है प्रोबेशनरी पीरियड के लिए लें, इंटर्नशिप के लिए लें, एमटीओज के लिए लें, और फॉलोअप्स होते हैं। ये चीज़ें ऑन कैंपस दो तरह की हैं कि एक तो हम कैंपस हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हमारे एचआर कास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात है कि हमें फ्रेश टैलेंट मिल रहा होता है, which are going to be graduated in the next few months, or which are graduated in the few last months. So in both of the case हमें fresh talent मिल रहा होता है और हमें वो facilitation भी मिल रही होती है, so we can do a good hiring there. और universities को भी ये फायदा है कि उनके graduates are get hired. So on campus recruitment is one of the good way to recruit the entry level position, because it has to determine the candidate is worthy of further consideration or not.
किस तरह होता है उसके लिए, और इसको हम ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट में जब कुछ उनका वक्त रहता है, साल एक रहता है, 6 महीने रहते हैं, तो वी कैन ऑफर देम द इंटर्नशिप्स एज वेल, और इंटर्नशिप के एंड पे हम फिर असेस कर सकते हैं दैट इंटर्न हैज द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज टू go forward or not. And other than these sources, we have the employees referrals, कि हमें कोई अपना एम्प्लॉय जो है वो रेफर करे, कोई बाहर का बंदा कि जी ये मिस्टर एक्स वाई जी जो है वो ही इज अ वेरी गुड कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको आप ले लें। वॉक-इन्स हैं, वॉक-इन्स ये हैं कि अनसॉलिसिटेड वॉक-इन्स हैं, इनके सॉलिसिटेड वॉक-इन्स जो हैं वो हमारे एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप टेस्ट वगैरह के लिए ले आ जाएं। लेकिन अनसॉलिसिटेड वॉक-इन्स वो होते हैं कि कोई भी बंदा आके आपके पास अपना सीवी ड्रॉप अप कर देता है एंड यू हैव दैट सीवी एट योर इन योर रिकॉर्ड्स, उस रिकॉर्ड के बेस पे आप फिर उनको अप्रोच करते हैं और वहाँ से आप एप्लीकेंट्स लेते हैं और बाकी प्रोसेस करते हैं। आजकल एक नई वो है पिछले 5-6 सालों से, दैट इज करियर एक्सपोज। करियर एक्सपोज न्यूली ग्रेजुएट और फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किए जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, इंफॉर्मेशन पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, न्यू एंट्रीज के बारे में, न्यू पोजीशंस के बारे में। सो उनको हम एज अ सोर्स ऑफ एप्लीकेंट्स यूज़ करते हैं, और फर्दर जो इंटरव्यूज़ हैं वो फिर हम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंगली करते हैं। जो इनिशियल स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग आउट है, वो वहाँ पे हो जाती है। अब जो एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट या नियरली एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट हमें वहाँ से मुयसर होता है, उनको हम फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो मेन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में लेके चले जाते हैं। And now we have in today's world we have own website based connected HRIs। कैरियर के नाम से एक टैब बना होता है, जॉब्स के नाम से या HR के नाम से एक टैब बना होता है, एंड वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू द विजिटर ऑफ द वेबसाइट कि जी अपना एक प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल को अपडेट करते रहें। whenever we have a position we can email them, we can give them a message on their मोबाइल फोन या उनके जो अदर सोशल मीडिया उस पे हैं, उस पे हमें उनको एक अलर्ट देख सकते हैं कि वी हैव दिस these vacant positions for which you seems to be qualified one, so do apply for it, और वहाँ से हमें एप्लीकेंट्स मिल सकते हैं। और एम्प्लॉय रेफरेंस की हमने बात की कि जी बिकम जो एम्प्लॉय रेफर कर रहा है किसी दूसरे को, वो कंसर्न अगर उसकी जो एम्प्लॉय को हम जिसको उसने रेफर किया है उसको हम हायर कर लेते हैं, सो दैट रेफरिंग एम्प्लॉय बिकम अ स्टेक होल्डर, बिकॉज ही थिंक कि जी मेरी जो से है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वन, सो आई वाज कंसिडर्ड, माय से वाज कंसिडर्ड, एंड इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा रिक्रूटमेंट का नहीं होता, वहाँ पे बड़े जल्दी हो जाता है। इट कैन स्पीड अप डाइवर्सिफाइंग द वर्क फोर्स, जो कि हमारे टुडेज वर्ल्ड के लिए वी नीड अ डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्स, सो उसके लिए एम्प्लॉयर रेफरेंस इज वन ऑफ द की एंड द स्पीडी वन, जो कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। बट here we have an issue with that relying on referrals may be discriminatory, because the person who are referring the applicants to us, he may have some close relationship with that referred person, जो जिस बंदे को उन्होंने रेफर किया उसके साथ उसके क्लोज टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, सो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, सो वी हैव टू कीप दोस लीगल, मॉरल एंड एथिकल इश्यूज इन कंसिडरेशन व्हाइल accepting the employee referrals. Walk-ins, जैसे हमने कहा, seek employment through personal direct approach to the employer, CVs drop key, and then we have a check or we have asked the person to involve in our recruitment process and get selected. Courteous treatment of any applicant is a good business practice, because जिससे आपने CV ले ली, उस वक्त आपके पास कोई vacant position नहीं है, you can ask that person to have a follow up of his CV and keep updating himself कि हमारे पास कोई भी पोजीशन आती है तो आपकी CV आ गई हमारे पास, you will be our first priority. So that is actually building your image in the employee market. The job market है, वहाँ पे आपकी positive image building का किरदार अदा करती है। And recruitment research finding practical application for managers कुछ हैं
कि रिक्रूटमेंट रिसर्च फाइंडिंग क्या है, द रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक आप एप्लीकेंट्स यू अट्रैक्ट, जिस सोर्स के जरिए आप एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट जनरेट करते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्लीकेंट्स को भी आप करते हैं। क्योंकि अगर आप आईसीटी बेस कर रहे हैं सो मींस के जो लोग आईसीटी से रिलेटेड हो, आईसीटी को यूज कर रहे हो, सो वो लोग आपके पास आएंगे। सो उसमें से एप्लीकेशन क्या है, यूज search sources such as referral from current employees that yield applicants more likely to be better performer। तो हमें रेफरल्स अगर यूज करने हैं तो करंट एम्प्लॉयज के, तो वो उन लोगों से चाहिए जिनकी ऑलरेडी कंपनी में टाइम हो चुका हो ऑर्गेनाइजेशन एंड दे नो द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑल दोस। रिक्रूटमेंट मटेरियल हैव अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट इफ दे कंटेन्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो जो हम उनसे जॉब एप्लीकेशन वगैरह करवा रहे हैं, इट मस्ट हैव, दे मस्ट हैव दोज रेलेवेंट प्रोसेसेस के जी, उसमें रेलेवेंट प्रोविजंस के जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इमेज इन्फ्लुएंस एप्लीकेंट्स इनिशियल रिएक्शन, क्योंकि जो ब्रांड इमेज आपका बना होता है जॉब मार्केट में, पीपल्स रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब अगर यू हैव अ पॉजिटिव इमेज देयर, so there will be a lot of applicant for the vacant position. If you don't have such, it will be vice versa. An application with a greater number of job opportunities are more attentive to early recruitment activities. वो एप्लीकेंट जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं वो मोर अटेंटिव होते हैं अर्ली रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब जो बंदा जिससे जो स्पीड अप रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए ज़्यादा होते हैं। सो जैसे ही वो क्योंकि वो अप्रोच करते हैं बहुत से जगहों को, और जहाँ से उन्हें जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले दे कैश दैट अपॉर्चुनिटी, और वो होते भी चूंकि वोलेटाइल है। सो वी नीड सच एप्लीकेंट्स जिनके पास जो कि वोलेटाइल हो, जो कि हर जगह पे अप्लाईज कर रहे हो, बिकॉज दैट्स वी नीड सच वोलेटाइल एम्प्लॉइज। Realistic job reviews that highlight both the advantages and disadvantages of the job reduce subsequent turnover। हमें ये बताना ज़रूरी है कि इस जॉब के जो हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्रीवियस जॉब एक्चुअली जो लोग हमें चाहिए किस तरह, क्योंकि जितने रियलिस्टिक हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उसको जॉब स्पेसिफिकेशन को और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतने ही हमारे जो ब्रांड इमेज है जॉब मार्केट में वो बड़ा अच्छा बनेगा। बिकॉज इफ वी डिडंट डू, और हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी ग्लैमरस टाइप की बनाई है, बट इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग such thing, so then there will be a breach in violation of psychological contract, which may lead a diluted brand image, broken promises type thing. So they may have repercussions, negative repercussions. So these are some of the research findings based related with the recruitment, जिसके practical कुछ implications हैं for managers. So now in today's world we have the human resource information systems. जी यहाँ से हमने अपना एक human resource information system, now we have computerized human resource information system. So वहाँ पे हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम उसके ज़रिए अपनी बड़ी एक अच्छी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से पहला पार्ट है रिक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि किस डिपार्टमेंट को कितने लोग चाहिए, ठीक है जी। अब वो अगर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है और पीरियोडिकल उनसे रिक्विजिशन मांगी जाती है एंड देन फिल आउट कि जी हमें कितने लोग चाहिए। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है कि जी ठीक है आपको कितने लोग चाहिए, हमें लोग कहाँ से मिलेंगे। तो लोगों के लिए फिर हमने सोर्स ढूंढा होता है कि जी कहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेंट एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट आएगा, सो दैट रिक्रूटमेंट सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। रिक्रूटमेंट के बाद थर्ड पोजीशन में आते हैं स्क्रीनिंग सर्विसेज होती हैं, कि हमने स्क्रीन आउट करना है उन लोगों को जो कि हमारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होते, एंड दैट बिकम्स अ गुड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि इसको स्क्रीन आउट कर सके इजीली। और सबसे आखिरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये हायरिंग मैनेजमेंट है, कि किस बंदे को हमने हायर करना है तो उसकी पे जो पर्क्स प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। So that's another key element of the human resource information system. So if we have such a
human resource information system primarily based on ICTs, so we can have good recruitment, और हमें integrated approach मिल जाएगी recruitment की, and at the end we will be come up with such employees which are benefiting the organization as well. Now in today's world, as we need more diverse workforce, तो उसमें से single parents की भी बात आ जाती है, older workers की, although Indian subcontinent में Pakistan, India, Bangladesh, यहाँ पे it's not an issue, but in other world and West specifically, older workers is a major issue. So उनके साथ ये कुछ issue हैं कि हमें देखने होंगे कि कैसे we can cope with such जो वर्क डाइवर्सिटी है उसमें हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जनरली एंड इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली वी हैव अ यूथ सर्च कह सकते हैं कि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है. सो ओल्डर वर्कर तो नहीं है, लेकिन जो पोस्ट मिलेनियल्स हैं या जनरेशन जी है या आई जिन जिसको हम कहते हैं आई जनरेशन जो है हमारे पास वो आ रही है, उसकी वजह से जो वर्क फोर्स के डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. सो वो उसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम बेबी बूमर्स, फ्रॉम एक्सेस एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जो वाई जनरेशन है उससे डिफरेंट वन है. सो वी नीड टू कीप दीज थिंग इन कंसिडरेशन के एस डाइवर्स वर्क फोर्स की हालत में हमें क्या करना. Minorities and women की बात है, we need all inclusive human resource. So all inclusive human resource में हमें फिर ये सारी चीज़ों को देखना होगा. And welfare to work, we shall have an organization जहाँ पे employee satisfied हो psychologically भी और physiologically भी. जो physical environment है वो भी ज़्यादा ज़्यादा अच्छा हो उनके लिए, जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है उसको भी वो फील करे एंड दे फील अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की जो हम बात करते हैं. एंड देन कम्स द डिसेबल्ड आर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, स्पेशल पर्सन्स की बात है कि उनको हमने लेकर भी आना है. ऑल इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए, लेकिन उनके साथ ये है कि उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है जिसके लिए अब बिल्डिंग कोड्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं कि हर जगह पे वो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो जा सके इम्पेयर्ड विजन्स के साथ, जो हैं जो हाथ पाँव से थोड़े से डिफरेंटली डिसेबल्ड हैं. सो उन लोगों को ट्रीट करने के लिए हमें उन लोगों को रिक्रूट करने के लिए कि हमारे पास एक डाइवर्स वर्कफोर्स है. डाइवर्स वर्कफोर्स के हम बेनिफिट्स बता चुके हैं कि उसके हमारे पास नए आइडियाज आते हैं. सो ऐसे लोग हमारे पास हों, सो वी कैन हैव अ गुड एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स जहाँ से हमें डिफरेंट आइडियाज आउट ऑफ बॉक्स एम्प्लॉइज की सूरत में आ सकते हैं. So that was all about this part of the lecture. In next part of the lecture, we'll be discussing about the job application form. So we'll be